نیو یارک سے تازہ ترین عالمی خبروں اور تجزیوں کے ساتھ جہانگیر خٹک آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج جہاں نیو یارک میں منگل کی رات اور نومبر کی 18 تاریخ، جبکہ پاکستان میں بدھ کی صبح اور نومبر کی 19 تاریخ ہے۔ ناظرین، خبریں بہت ہیں۔ ایک مرتبہ پھر سیدھا خبروں کی جانب بڑھتے ہیں، اور دو پہلی بڑی خبریں امریکہ سے ہیں۔ پہلی خبر، آج ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز یعنی امریکہ کا جو ایوان زیریں ہے، اس نے اس بل کی منظوری دی جس کے تحت جو امریکہ کے ایک بدنام زمانہ سیکس اوفینڈر جیفری ایپسٹین کی فائلز جو ہیں وہ ریلیز کی جائیں گی۔ تو گویا اب سینٹ اور ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز دونوں نے اس کی منظوری دے دی ہے، اور اب یہ صدر ٹرمپ کے ڈیسک پہ جائے گا یہ بل، اور وہ اس پر دستخط کریں گے، اور اس دستخط کے بعد وہ فائلز جو اس وقت صیغہ راز میں رکھی جا رہی ہیں وہ کھولی جائیں گی۔ خوف ہے کہ بہت سارے بڑے بڑے سیاستدانوں اور دنیا کی بڑی بڑی شخصیات کے نام شاید اس میں شامل ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ کس کس کے نام سامنے آتے ہیں۔ ان شخصیات میں ہارورڈ یونیورسٹی کے سابق چانسلر لیری سمرز کا نام بھی شامل ہے، جو کہ مختلف ڈیموکریٹک حکومتوں کا حصہ رہے ہیں، سینئر آفیشل ہے، اور آج انہوں نے پبلک اپالوجی بھی کی ہے کہ ان کا نام ان ای میلز میں آیا ہے۔ ایک اور بڑی خبر آج نیو یارک ٹائمز نے آج ہی بریک کی ہے، اور اس کے مطابق صدر ٹرمپ نے سی آئی اے کو وینزویلا میں خفیہ کارروائیوں کی اجازت دے دی ہے۔ اس اخباری رپورٹ کے مطابق نہ صرف یہ کہ صدر ٹرمپ نے سی آئی اے کو وینزویلا میں خفیہ کارروائیوں کی اجازت دی ہے، بلکہ وینزویلا کے صدر نکولس مڈورو کے ساتھ امریکہ نے خفیہ رابطے بھی شروع کیے ہیں۔ اور ایک اطلاع کے مطابق مڈورو نے امریکہ کو یہ آفر کی ہے کہ وہ اپنے عہدے سے ریزائن کر دیں گے، لیکن اس میں ان کو تھوڑا وقت دیا جائے، اور امریکہ اس سے انکاری ہے۔ امریکہ ان کو مزید وقت نہیں دینا چاہتا، بلکہ کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ مڈورو نے امریکہ کو یہ بھی پیشکش کی ہے کہ وینزویلا اپنی جو تیل کی انڈسٹری ہے وہ امریکی کمپنیوں کے لیے کھولنے کے لیے تیار ہے، لیکن فی الحال لگتا یہ ہے کہ صدر ٹرمپ اس وقت تو کسی ڈیل کے موڈ میں نہیں ہے۔ لیکن آج انہوں نے واشنگٹن میں اخباری نمائندوں کو بتایا تھا کہ وہ بات چیت کو جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ اور اب چلتے ہیں آج کے سب سے مشکل اور تکلیف دہ موضوع کی جانب۔ ناظرین، جب برطانوی تاریخ کے سب سے عظیم فلسفی، منطق دان، ریاضی دان، مصنف، سماجی نقاد اور سیاسی کارکن برٹرنڈ رسل نے 1935 میں لکھا تھا کہ فاشزم کی اصل روح یہی ہے کہ طاقت ہی حق ہے، اور طاقتور آدمی کو کمزوروں پر حکمرانی کا ہر حال میں حق حاصل ہے، تو شاید انہیں اندازہ نہ تھا کہ 90 سال بعد یہی گھٹیا سوچ پاکستان کے اقتدار کے ایوانوں میں کھلے عام ناچ رہی ہوگی۔ رسل کا یہ جملہ مجھے آج جو کچھ اٹیالہ جیل کے باہر ہوا اسے دیکھ کر یاد آیا۔ وہ ویڈیوز جو اس وقت ہر طرف وائرل ہیں، آپ نے بھی دیکھی ہوں گی یقیناً، اور میں نے بھی دیکھی ہیں۔ دل افسردہ ہے، کیونکہ میرا پاکستان کبھی بھی ایسا نہ تھا۔ یہ تو وہ پاکستان تھا جہاں پر کہ رواداری ہوا کرتی تھی، جہاں پر کہ ضیاء الحق جیسے بدترین ڈکٹیٹرز بھی باوجود ہر قسم کی گھٹیا حرکتوں کے کہ کم از کم چادر اور چار دیواری کا تھوڑا بہت خیال رکھتے تھے۔ پھر ہم نے اس کے بعد کے ادوار بھی دیکھے، لیکن کبھی بھی اس حد تک پاکستان کی ریاست نہیں گری تھی جتنی کہ ہم نے آج دیکھی، جب پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی بہنیں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے اڈیالہ جیل آئیں۔ آج منگل کا دن تھا، اور منگل کا دن ملاقاتوں کا دن ہوتا ہے۔ جب وہ وہاں پہنچی تو وہاں پر ان کو ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ ایک مرتبہ پھر گزشتہ 12 دنوں سے عمران خان کے ساتھ کسی نے ملاقات نہیں کی، کیونکہ جیل اتھارٹیز اس کی اجازت نہیں دے رہی۔ اور وہاں پر ان بہنوں نے دھرنا دیا، اور کئی گھنٹے تک وہ وہاں بیٹھی رہی، اور جب رات ہوئی تو وہاں پر بجلی بھی بند کر دی گئی، اور اس کے بعد پھر وہاں پر پولیس نے ایکشن کیا۔ وہاں پر ان کو وہاں سے ہٹایا۔ چند ہی لوگ تھے، یعنی کوئی بہت بڑی ہزاروں کی تعداد میں لوگ بھی نہیں تھے، بہت کم لوگ تھے۔ اور ان میں سے جو عمران خان کی 70 سالہ بہن ہے نورین خان، ان کو سڑکوں پر گھسیٹا گیا، ان کے اوپر تشدد کیا گیا، ان کو سڑکوں پر گھسیٹا گیا۔ اور آپ خود دیکھ رہے ہوں گے کہ جو ویڈیوز ہر طرف ہیں، میں بھی یہ تھوڑا چند سیکنڈ کی ویڈیو چلانا چاہتا ہوں۔ یہ اس لیے نہیں کہ آپ نے پہلے نہیں دیکھی، بلکہ یہ اس لیے کہ میں آپ کو یاد دلاؤں کہ یہ وہ پاکستان ہے جہاں پر کبھی اقدار کا راج تھا، آج یہاں پر انسانی درندگی کا راج ہے جو ہمیں سڑکوں پر نظر آ رہا ہے۔ پیچھے ہوں تم لوگوں کا غیرت نہیں آئی ہے، بے غیرت کے بچوں، خدا تم لوگوں کا غیرت کرے، اللہ کرے تم لوگ مر جاؤ سارے۔ آمین آمین۔
इनको सड़क के ऊपर घसीट रही थी वो औरतें। बेगैरत, तुम लोग ये मरियम नवाज के साथ करके देखो, कुत्ते के बच्चों, ये याद आना था तुम लोगों को। आज तक हम इसके बाद देखिए ये जो वीडियो गई हर तरफ, तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिएक्शन आया। जाहिर है इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं वो भी गुस्से में हैं, और वो लोग जो कि इमरान खान के फॉलोअर्स नहीं हैं, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, तो वहां पर अब हर किस्म का जो रिएक्शन है वो आ रहा है। जो महमूद खान अचकजई हैं, जो कि बड़े सीनियर सियासतदान हैं, आज वो भी काफी गुस्से में नजर आए। उन्होंने क्या फरमाया? पहले भी ये हुकूमत कातिल है, कातिलों की हुकूमत है, दहशत गर्दों की हुकूमत है। इन्होंने 25 करोड़ इंसानों को दहशत ज़दा करके बंदूक के जोर पे मिलिट्री की ताकत से और इमरान खान की पार्टी का मैंडेट छीना। जी, जैसा कि आपने देखा कि महमूद खान अचकजई कह रहे हैं कि ये हुकूमत बेसिकली कातलों और दहशतगर्दों की हुकूमत है, और इसी ने इमरान खान का मैंडेट चोरी किया और उनकी नशिस्तों को दूसरी पार्टियों में बांटा, यानी वो जो तारीख का हिस्सा है। लेकिन महमूद खान अचकजई काफ़ी एजिटेटेड नज़र आ रहे थे, काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे थे। लेकिन महमूद खान अचकजई का गुस्सा नाजायज़ नहीं था, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के अल्लामा राजा नासिर अब्बास का गुस्सा नाजायज़ नहीं था। वो भी काफ़ी ज़्यादा जज्बाती नज़र आए जब उन्होंने ये सब कुछ सुना, देखा। वहां पर वो मौजूद रहे उनकी बहनों के साथ, यानी इमरान खान साहब की बहनों के साथ। याद रखिए कि नौरीन खान की उम्र 70 साल है, यानी कोई कोई इंसानियत होती है। मैंने तो कभी ऐसा बहुत कम देखा है। सिर्फ और सिर्फ ये जो पाकिस्तान इस वक्त जो फस्तायत के दौर से गुजर रहा है, जहां पर के कलमगो वो लोग जो है कि बड़े तिलावत के साथ अल्लाह का कलाम सुनाते हैं, और इसकी बुनियाद पर इस मुल्क पर गैर कानूनी हुकूमत कायम करने का हक समझते हैं, उनको ये सब कुछ भूल गया कि ये कौन से मुल्क में होता है। और यही अल्लामा साहब फरमा रहे हैं। आइए सुने उन्होंने क्या फरमाया। बूढ़ी औरतों को मारना है, ये कौन सा पाकिस्तान है, कौन सी इंसानियत है, कौन सा दीन है? ये तो काफिर भी ऐसा नहीं करेगा कोई। किसी के नामूस के साथ ऐसे करना, किसी की बहनों के से मारना, मुलाकात नहीं करने देना उसको। ये इस्लाम है, ये पाकिस्तान है, ये कलमा है, ये कुरान मानने वाले हैं। ये तो काफिर भी नहीं करते हैं किसी के साथ। जैसा कि आपने देखा कि अल्लामा साहब काफी नाराज हैं, और वो नाराजगी भी उनकी समझ में आती है, क्योंकि ये एक ऐसा वाक़या है कि यहाँ पर न सिर्फ ये कि ख़वातीन का एहतराम नहीं किया गया, बल्कि जो पाकिस्तान के इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, स्पेशली पीटीआई के दो, एक सूबाई वजीर थे मीना खान, जो कि खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वजीर हैं, वो वहाँ मौजूद थे। उनके साथ यानी उनके उनके गिरबान से पकड़ा गया, और उनके ऊपर थोड़ा बहुत तशद्दुद भी किया गया, या उसकी कोशिश की गई। और साथ ही फिर शाहिद खट्टक जो एमएनए हैं, उनके ऊपर भी यानी उनको भी मिस हैंडल किया गया। और उसके ऊपर फिर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल आफरीदी का एक बहुत गुस्से से भरा मजम्मती बयान आया। जो सोहेल आफरीदी का ये बयान है, जिसमें कि वो इस वाक़े की शदीद मजम्मत कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वाकई आप इस मामले को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही। तो आज हलीमा खान से एक बयान मंसूब है, जिसमें वो कह रही हैं कि उनको बताया जा रहा है, बकौल उनके उनको बताया जा रहा है कि जब तक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का उनके नए ओहदे की हैसियत से नोटिफिकेशन नहीं होता, उस वक्त तक इनकी मुलाकात नहीं होने दी जाएगी। क्या इस खबर में कोई हकीकत है? आई एम नॉट श्योर। लेकिन जो कुछ हो रहा है, ये सबको मालूम है कि जो अडियाला जेल है ये कौन कंट्रोल करता है। ये किसी की भी बहुत बड़ी खामख्याली होगी अगर वो समझता है कि अडियाला जेल को पंजाब गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। इसको पंजाब गवर्नमेंट नहीं कंट्रोल करती, इसको कोई और कंट्रोल कर रहा है, जिसका नाम इमरान खान कई मरतबा ले चुके हैं, पीटीआई की क़यादत कई मरतबा ले चुकी है। नाजरीन, अमेरिका के तीसरे सदर और इस मुल्क के बानियों में से एक कदावर लीडर थॉमस जेफरसन ने एक मरतबा कहा था, व्हेन द पीपल फियर द गवर्नमेंट देयर इज टेररिटी, एंड व्हेन द गवर्नमेंट फियर्स द पीपल देयर इज लिबर्टी। यानी जब अवाम को हुकूमत से खौफ आए तो इसे आमरीत कहते हैं, और जब हुकूमत अवाम से खौफ खाए तो इसे आज़ादी कहते हैं। इसका फैसला आप कीजिए कि शायद पाकिस्तान में इस वक्त आमरीत का राज सड़कों पर अपने नंगपन में हर शक्ल में सामने आ रहा है, बल्कि हर बदबूदार शक्ल में सामने आ रहा है। और न सिर्फ ये, बल्कि दूसरी जानिब जो हमारी सिविल सोसाइटी है वो भी माजरत के साथ लगता है सोई हुई है, जिसका इजहार हालिया दिनों में इस्तीफा देने वाले सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मंसूर अली शाह ने इन अल्फाज में किया। Civil society sitting right in front of me. It's dead. Where are the public interest litigation? You're going to sit at home and crib about air pollution? You're going to sit at home and talk about climate change? When have you come out to file petitions? When have you gone out protesting?
Civil societies that are dead, this happens to them. See, so live with the air pollution that you have, because you haven't done much, to my mind. मंसूर अली शाह गिला कर रहे हैं कि पाकिस्तानी सोसाइटी बिल्कुल सोई हुई है, ना ये अदलिया से रुजू कर रही है और ना ही अपने हुकूक की हिफाजत के लिए सड़कों पर निकल रही है। मैं शाह साहब की अदालती रिकॉर्ड को हमेशा से नाक़िद रहा हूँ, आपने कई मरतबा मुझे सुना भी है, लेकिन मैं इनकी इस बात से मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक करता हूँ। और अगर आप भी इत्तेफाक करते हैं तो आपसे दरख्वास्त कि आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तानी कौम अपने हुकूक के लिए निकलना नहीं चाहती, या खौफ में मुब्तला है, या थॉमस जेफरसन का जो कॉल है ये पाकिस्तान में इस वक्त सच्चा साबित हो रहा है। आप अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिए। अब चलते हैं एक और ख़बर की जानिब जो कि अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक है। अफ़गानिस्तान का मीडिया आज ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर, उनका नाम है सईद खतीबजादे, उनसे एक बयान मंसूब है जिसमें वो कह रहे हैं कि ईरान आइंदा दिनों में यानी दिसंबर के वस्त में एक मीटिंग कॉल कर रहा है, एक इजलास का इनेकाद करेगा जिसमें कि रूस और चीन का भी इम्कान है कि वहाँ पे वो उसमें शिरकत करेंगे। इसका मकसद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मौजूद जो इस वक्त कशीदगी है उसको कम किया जा सके। अच्छी खबर है, ईरान ने इससे पहले भी बड़ी कोशिश की है, साल्फी की पेशकश भी की है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की क़यादत ने काफ़ी हार्ड लाइन ली हुई है तो इसलिए फिलहाल कोई इसमें जो साल्फी का किरदार है कोई भी अदा करे तो उसमें कोई बड़ी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। बावजूद इसके कि आज ईरान के वजीर खारजा ने तालिबान हुकूमत के वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी से टेलीफोन पर बात भी की है और उसमें इलाकाई उमूर पर बात हुई है। शायद पाकिस्तान और अफगानिस्तान की कशीदगी भी कहीं ना कहीं उसका जिक्र हुआ है, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जितनी जितनी दूरियां बढ़ रही हैं, जो कि इस खत्ते के लिए बहुत बुरी खबर है, वहीं अफगानिस्तान में दूसरे ममालिक को स्पेस मिल रही है जिसमें कोई बुराई भी नहीं है। जिसमें मैं भारत का नाम स्पेशली लूंगा क्योंकि अफगान हुकूमत अब भारत के करीब हो रही है। आज एक खबर सुर्खियों में है कि अफगान नेशनल एयरलाइन यानी आरियाना अफगान एयरलाइंस के जो सरबराह हैं मौलवी बख्तरुर रहमान शराफत, उन्होंने ऐलान किया है कि अफगानिस्तान से भारत जितनी भी फ्लाइट्स जाएंगी आरियाना की, तो उनके जो फ्रीट के ट्रेड हैं यानी कार्गो के चार्जेस जो हैं वो टैरिफ्स उसके वो लो कर रहे हैं, यानी उसको उसमें 50% कटौती कर रहे हैं। अब फी किलोग्राम भारत के लिए जो माल जाएगा अफगानिस्तान से तो वो सिर्फ और सिर्फ $1 फी किलोग्राम चार्ज किया जाएगा जो आरियाना एयरलाइन पे भेजा जाएगा, जबकि भारत से जो अशिया आएंगी उनके ऊपर सिर्फ 80 सेंट फी किलोग्राम चार्ज किया जाएगा। यूं अफगान हुकूमत इस वक्त अफगान ताजरों को बहुत ज़्यादा इनकरेज कर रही है कि वो भारत से जितना ज़्यादा माल मंगवा सकते हैं मंगवाएं, और यही वजह है कि भारत और अफगानिस्तान और ईरान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बाहमी तिजारत है उसमें इजाफा हो रहा है। स्पेशली मैं ईरान का जिक्र करूंगा जिनकी तिजारत इस वक्त अफगानिस्तान के साथ तकरीबन $1.5 अरब तक पहुंच चुकी है। और चूंकि पाकिस्तान की सरहदी राहदारियां सारी बंद हैं, जितना कारोबारी लोग थे उनका करोड़ों डॉलर्स का नुकसान हो गया है, लेकिन वो बंद हैं इस वक्त, जिसकी वजह से काबुल और दूसरे इलाकों में मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि ये जिस तरीके से अपनी इंपोर्ट के जो टैरिफ्स हैं वो कम कर रहे हैं तो उसका मकसद ये है कि पाकिस्तान का जो कमी आ रही है पाकिस्तानी अशिया की उसको इस तरीके से पूरा किया जाए। नुकसान किसका हुआ, ये सवाल भी मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि ये नुकसान किसका हुआ और क्या ये सब कुछ करने के बाद हमारे वो मसाइल हल हो गए जिनका हम तकाजा कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपने घर के अंदर कार्रवाइयाँ की हैं। आज भी खबरें हैं कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने केपी में कम से कम 4 ऑपरेशंस में दर्जनों दहशतगर्दों को हलाक करने की खबर सुनाई है। तो बहुत सारी कार्रवाइयाँ हमारी तरफ तो हो रही हैं, लेकिन फिर भी हमारी बॉर्डर गैर महफूज है और पाकिस्तान के अंदर आज भी बकौल पाकिस्तानी हुक्काम के अफगानिस्तान से दहशतगर्द आ रहे हैं। यानी पाकिस्तानी हुक्काम खुद ये मान रहे हैं कि वो अपनी सरहदों को महफूज करने में नाकाम है। लेकिन ये एक अलहदा सब्जेक्ट है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में तालिबान हुकूमत और अब भारत के दरमियान जो ये बढ़ता हुआ ताल्लुक है, इसमें मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई बहुत ज़्यादा तशवीश होनी चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, ये उनका हक है कि जिनके साथ वो अपना ताल्लुक बढ़ाएं। लेकिन हाँ, तशवीश इस बात पर ज़रूर होनी चाहिए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो अब दूरियां बढ़ रही हैं इनको कम किस तरीके से किया जाए। मेरा ख्याल ये है कि यहाँ पर ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब चलते हैं आज की सबसे बड़ी और आखिरी खबर के, जो कि यहाँ वाशिंगटन में थी। आज मोहम्मद बिन सलमान यानी सऊदी वली अहद वाशिंगटन आए, 7 साल बाद आए। एक ऐसे वक्त आए जब उनके ऊपर अदनान खशोगी जो कि एक सऊदी जर्नलिस्ट थे उनका कत्ल हुआ था, वाशिंगटन पोस्ट में वो लिखते थे, और उसका इल्ज़ाम
मोहम्मद बिन सलमान पर था। आज अमरीकी मीडिया में हर तरफ ये खबर सुर्खियों में है कि मोहम्मद बिन सलमान को एक बहुत अच्छा इस्तकबाल दिया गया, और उनके इस दौरे के जो नतायज हैं वो भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं मेरी राय में। और उसको मीडिया भी हर तरफ बहुत ज़्यादा प्ले कर रहा है, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान ने आज जो यहाँ पर कहा और जो ऐलानात किए, शायद वो बहुत सारे अमरीकी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मसलन जब सर ट्रंप के दफ्तर में यानी व्हाइट हाउस में बैठकर, ओवल ऑफिस में, जब वो प्रेस से बात कर रहे थे, तो वहां पर उन्होंने कहा कि सऊदी अरब जो है वो इब्राहिमी मुआहदों में यानी अब्राहमिक अकॉर्ड जो हैं उसमें शामिल होना चाहता है। मगर उनका ये कहना था कि सऊदी अरब चाहता है कि उनको एक वाज़ेह रोड मैप मिले दो रियासती हल की तरफ, जहां पर के इसराइल के साथ साथ एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत भी बने। तो गोया मोहम्मद बिन सलमान अब कह रहे हैं कि जब तक कि हमें टू स्टेट सोल्यूशन का रास्ता नहीं दिया जाएगा, हम इब्राहिमिक अकॉर्ड में नहीं शामिल होंगे। मुझे जहां तक याद पड़ता है, पहले सऊदी अरब की ये पोजीशन थी कि जब तक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के लिए बड़े इकदाम नहीं किए जाएंगे तब। अब लगता है कि अगर आप वादा भी कर लें तो ये भी काफ़ी है। फिर सर ट्रंप ने भी इसकी खुली हिमायत की, बहुत खुश थे सर ट्रंप, और उन्होंने कहा कि इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान जो ताल्लुकात हैं इनको नॉर्मलाइज करने के लिए वो मुनासिब हालात पैदा करने की पूरी कोशिश करेंगे और उस पर वो काम भी करेंगे। यहाँ पर एक जो बहुत बड़ा ऐलान हुआ वो ये है कि अमेरिका सऊदी अरब पर F-35 स्टेल्थ जहाज जो हैं, लड़ाका तैयारे जो हैं, वो बेचेगा। बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इस वक्त मिडल ईस्ट में मैंने कल भी जिक्र किया था कि सिर्फ इसराइल वो मुल्क है जिसके पास ये अहलियत है, और उनके पास मोस्ट एडवांस्ड F-35 है। और साथ फिर उन्होंने एक और भी जो जिक्र किया कि अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान सिविल न्यूक्लियर एनर्जी की डील हुई है, जिसके तहत अमेरिका IAEA की सेफ गार्ड्स के तहत आज एनर्जी के प्रोजेक्ट शुरू करेगा न्यूक्लियर एनर्जी के हवाले से, ताकि सऊदी अरब अपनी न्यूक्लियर एनर्जी से भी इस्तेफादा हासिल कर सके। इस मुलाकात के शुरू में सर ट्रंप ने कहा कि उन्हें बड़ी खुशी है कि सऊदी अरब अमेरिका में $600 अरब की सरमायाकारी करेगा। फिर साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वैसे मेरी ख्वाहिश है कि सऊदी अरब $1 खरब यानी 1,000 अरब की सरमायाकारी करे अमेरिका में। और इसके जवाब में मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि बिल्कुल मैं $1,000 अरब की प्लेज करता हूँ, यानी ये वादा करता हूँ कि सऊदी अरब अमेरिका में $1,000 अरब की सरमायाकारी करेगा। वहां पर मौजूद एक सहाफी ने मोहम्मद बिन सलमान से पूछा भी कि $1,000 अरब तो बहुत ज्यादा हैं। इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें सिर्फ $63 फी बैरल हैं। इतनी कम कीमतों के साथ आप इतनी ज्यादा सरमायाकारी कर सकते हैं? तो उसके जवाब में मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि ये भी एक बहुत अच्छा कारोबार है, क्योंकि अमेरिका में इन्वेस्टमेंट के अच्छे मौके हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि ये जो ओवरऑल मुलाकात थी, इसने शायद मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स को दो तीन तरीकों से यानी बिल्कुल तब्दील कर सकती है पोटेंशली। अभी तो फिलहाल तो हम ये नहीं कह सकते कि फौरन कर दिया है, लेकिन कर सकती है। एक तो ये कि अगर सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात बहाल होते हैं, तो इसका असर पाकिस्तान पर क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान तो सऊदी अरब का बहुत करीबी इत्तेहादी है, डिफेंस कोऑपरेशन का एग्रीमेंट किया हुआ है। सऊदी अरब के ऊपर हमला, पाकिस्तान के ऊपर हमला तस्वर किया जाएगा इस मुआहदे के तहत, जो हमें बताया गया, क्योंकि इस मुआहदे के बाकी जो शिक्के हैं वो खुफिया हैं। लेकिन ये जरूर है कि जब पाकिस्तान पर अफगानिस्तान की जानिब से जारियत की गई थी, तो सऊदी अरब ने उसको कंडेम नहीं किया था। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे की मौजूदगी में, जिसको बहुत सारे लोग नेटो से भी तशबीह दे रहे हैं, कि जिस तरह नेटो का भी बिल्कुल आर्टिकल 5 उनका यही कहता है कि एक नेटो के मुल्क पर हमला पूरे नेटो पर हमला तस्वर किया जाएगा, बिल्कुल वैसी ही शिक पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले मुआहदे में है। ये हमें बताया गया है। लेकिन अब सवाल ये है कि सऊदी अरब को अगर F-35 जहाज मिल जाते हैं, जो कि दुनिया के सबसे जदीद तरीन तैयारे हैं, अगर सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात बहाल होते हैं, सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करता है, पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान की क्या पॉलिसी होगी? क्या पाकिस्तान भी इसराइल को तस्लीम करेगा? और फिर ये कि अगर इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान जो मौजूद एक दुश्मनी की फजा है वो ख़त्म होती है, तो फिर सऊदी अरब को किससे दिफा चाहिए? क्योंकि अमेरिका के साथ भी उसका दिफाई मुआहदा है, यानी वो दिफाई मुआहदा तकरीबन तय पा चुका है। सर ट्रंप ने कहा भी कि दिफाई मुआहदा तकरीबन तय पा चुका है, और उनको नॉन नेटो एलाय का स्टेटस भी दे दिया गया है, यानी दुनिया में सिर्फ 18 मुल्क हैं जिनको स्टेटस मिला हुआ है। तो लिहाजा सऊदी अरब को जितनी सिक्योरिटी गारंटीज थी वो तमाम उनको तकरीबन मिल गई हैं। इसके बाद पाकिस्तान के साथ होने वाले मुआहदे की क्या अहमियत रह गई? इसके बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात पर इसका कितना असर होगा? इसके बाद सबसे बड़ा सवाल, क्या सऊदी अरब को अब पाकिस्तान की ज़रूरत है?
میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کی جو اوور آل جو یعنی اسٹینڈنگ ہے، اس پر اس کا کوئی اتنا زیادہ مثبت اثر نہیں ہوگا۔ ہاں، البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر پاکستان بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے اور سعودی عرب کے ساتھ ہی یعنی اس کشتی میں سوار ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کے اس خطے کی ڈائنامکس پر کیا اثر ہوگا، کیونکہ ایک طرف ایران ہے جو کہ اسرائیل کا شدید مخالف ہے، اور دوسری طرف یمن ہے جو پاکستان کے قریب تو نہیں لیکن سعودی سرحد پر تو ہے، اور ساتھ پھر جو پاکستان کے اندر مختلف علاقوں میں ایک نئی وہاں پر ایک سوچ سامنے آ سکتی ہے، جو کہ شاید نیسسریلی پاکستانی ریاست کے لیے کوئی اتنی زیادہ اچھی خبر نہ ہو۔ تو پاکستان کے لیے اس میں کمپلیکیشنز ممکنہ طور پر ہو بھی سکتی ہیں، لیکن ساتھ ہی پاکستان کے لیے ایک اچھی اپرچونٹی بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ صرف وقت بتائے گا کہ کس قسم کا ایگریمنٹ پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ کیا تھا۔ اب تک پاکستان کو سعودی عرب کے ساتھ کیے جانے والے اس معاہدے کا ایک رتی کا فائدہ نہیں ہوا۔ ہماری نہ تو وہاں سے انویسٹمنٹ آئی، یعنی سعودی عرب نے پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی۔ محمد بن سلمان نے منٹوں میں $400 ارب زیادہ اضافی انویسٹمنٹ کا اعلان کر دیا تھا ٹرمپ کی موجودگی میں آج۔ یقیناً انہوں نے پہلے سے فیصلہ کیا ہوگا، لیکن پھر بھی جبکہ پاکستان کے اندر انہوں نے آج سے کئی سال پہلے اعلان کیا تھا کہ میں سعودی عرب جو ہے وہ یا گوادر کے قریب آئل ریفائنری لگائے گا، $10 ارب کی سرمایہ کاری ہوگی، نہ وہ سرمایہ کاری آئی، وہاں پر ابھی تک بنیادیں بھی نہیں کھدی۔ تو اس لیے میں بہت زیادہ کانفیڈنٹ نہیں ہوں کہ اس کا پاکستان پر کوئی بہت زیادہ مثبت اثر ہوگا۔ تو اس لیے پاکستان جو ہے وہ شاید اس میں پاکستان کو اس سے کچھ زیادہ فائدہ مجھے نظر نہیں آ رہا، ماں سوائے اس کے اگین کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔